صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت مالک بن دینار نے شب برات کی رات میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا، اور صرف توبہ کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کو ہدایت بھی عطا کر دی، اللہ کے ولی ہو گئے۔ میرے عزیزو، اسی لیے آج کی رات اگر آپ گنہگار ہیں، اور گنہگار کون انسان نہیں ہے، کون اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اس لیے میرے عزیزو آج کی رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقین مانیں اگر آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے توبہ کو قبول فرما کر کے اللہ آپ کے مرتبے کو بلند کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو آپ جہاں تک ہو سکے آج توبہ کریں، اور جانتے ہیں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو آپ چاہے جتنے بڑے گنہگار ہو، آپ نے گناہ چاہے جتنا کیا ہو، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو حقیقت میں اللہ آپ کو محبوبین میں سے بنا لے گا۔ جانتے ہیں حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ سیر کرتے ہوئے آپ ایک دریا کی طرف گئے۔ دریا کے کنارے جب آپ پہنچے، سیر کرتے ہوئے آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ دو لوگ آئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں لوگ سیر کرنے کے لیے دریا کے پاس نہیں آئے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، لڑکے اور لڑکی دونوں آئے اور دریا کے کنارے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے شراب نکالا، شراب کو گلاس میں ادیلا اور شراب خوب پیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتی ہیں ان دونوں نے خوب شراب پیا، اور جب شراب پی چکے تو ایک گلاس شراب لا کر کے مجھے بھی دیا، اور انہوں نے کہا لیجیے آپ بھی شراب پیجیے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ شراب ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں ناجائز ہے، ہم اس شراب کو نہیں پی سکتے۔ انہوں نے شراب کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ان دونوں نے شراب کو پیا، شراب گانے لگے کہ باجا وغیرہ ساتھ میں لے گئے تھے، مائک وغیرہ، مائک میں وہاں انہوں نے خوب گانا گایا، اور جب خوب گانا جب گا چکے تب انہوں نے حضرت ذوالنون مصری کو بلایا اور کہا آپ بھی گانا گا سکتے ہیں۔ انہوں نے مائک دیا، حضرت ذوالنون مصری کو مائک دیا اور کہا لیجیے آپ بھی گائیے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی گاؤں گا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے کہا تم لوگوں نے جو گانا گایا تمہارا گانا الگ ہے لیکن میرا گانا الگ ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے مائک کو لے لیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لڑکی سن رہی ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، وہ لڑکی سن رہی ہے، بڑی دھیان سے سن رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب چند سورتوں کی میں نے تلاوت کر لی وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا، مگر وہ لڑکی سن رہی ہے۔ سنتے سنتے بہت دیر تک وہ لڑکی سنی، اور جب میں نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا وہ لڑکی میرے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی آپ کون سا گانا گا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا لڑکی سے ارے یہ گانا نہیں تھا، میں تو رب کے کلام کو سن رہا تھا، یہ میرے رب کا کلام ہے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ اسی کا کلام ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے اے انسان ارے جب یہ کلام نہیں اتنی تاثیر ہے تو جو کلام والا ہوگا وہ کتنا افضل ہوگا، وہ کتنا بہتر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں لڑکی نے کہا اے انسان مجھے اپنا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، یہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔
कहती हूँ। अल्लाह अकबर। कुरान को सुन करके हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं वो लड़की इस्लाम लाई, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। अब मेरे अजीजों आगे की बात आप सुने, कलमा पढ़ने के बाद क्या हुआ। हजरत जुन्नून मिस्री ने जो इस्लाम का तरीका था, इस्लाम में जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इबादत कैसे करनी चाहिए, हजरत जुन्नून मिस्री ने वो सारी चीजें उसको बता दी कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब मेरे अजीजों हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं सब कुछ बताने के बाद मैं अपने रास्ते चला गया और वो लड़की अपने घर चली गई। फिर हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं चंद सालों के बाद, कई साल बीत गए, कई सालों के बाद आप फरमाते हैं मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया तो मैं खाने काब कह रहा है, अल्लाह के वली कह रहे हैं, अल्लाह के बुजुर्ग बंदे कह रहे हैं, मैं लेकिन हज के लिए गया खाने काबा के गिलाफ में पूरा करके मैं दुआ कर रहा था। आप फरमाते हैं मैंने क्या देखा, पीछे से एक आवाज आ रही है और वो आवाज किसी लड़की की थी और वो लड़की कह रही थी कि अल्लाह मुझे खाना दे दे, अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे खाने का इंतजाम कर दे। जुन्नून मिस्री जब आवाज को सुनते हैं तो पीछे देखते हैं एक लड़की थी और वो अल्लाह से खाना मांग रही थी, है अल्लाह मुझे खाना दे दे। इतने में हजरत जुन्नून मिस्री क्या कहते हैं, मैं एक दस्तरखान नाजिल हुआ, आसमान से खाना नाजिल हुआ और लड़की ने भरपेट खाना खाया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये वाकया देखते हैं हैरत में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो रहा है, मांगने पे आसमान से खाना। हजरत जुन्नून मिस्री उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं बेटी माजरा क्या है। लड़की कहती है आप मुझे नहीं पहचानते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं नहीं मैं तो तुझे नहीं पहचानता हूँ। तो लड़की कहते याद कीजिए आज से चंद साल पहले क्या आप दरिया के सैर के लिए ना गए थे। आप कहते हैं हाँ मैं तो दरिया के सैर के लिए गया था। वो लड़की कहती है क्या आपकी मुलाकात किसी लड़की से हुई थी। आप कहते हैं हाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। वो लड़की कहती है वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की मैं ही हूँ। मैंने आपके हाथ में ईमान लाया था और जैसे आपने बताया था उसी तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने मुझे वो मकान दे दिया कि जब आज भूख लगती है मैं अपने अल्लाह से खाना मांगती हूँ, अल्लाह मुझे खाना अता कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों आप अल्लाह की बारगाह में अगर आप गुनाहगार हैं, यकीन माने अल्लाह की तरफ आप पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है, आपके गुनाह नहीं देखता है। अल्लाह ये तो सोचता है कि मैं किस बहाने अपने बंदे की मग़फ़िरत कर दूं। आप चाहे जितने बड़े गुनहगार हैं, यकीन माने आज इतनी मुबारक रात है, इतनी मुबारक रात है कि अगर आज की रात में आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और मेरे अजीजों आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत हो जाऊं कि आप कब्रिस्तान में माशाअल्लाह महफिल पाक का आपने इनेकाद किया है। आपको अगर चंद सूरतें याद हो या चंद आयतें याद हो या सिर्फ कलमा याद हो या सिर्फ दुरूद याद हो, जो कुछ भी आपको याद हो आप यहाँ से खाली ना जाए बल्कि आप कब्रिस्तान में जाएं, आयतों को पढ़ें, मुर्दे के नाम इसाले सवाब करें, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उसके बाद ही आप अपने घर जाएंगे। इसलिए कि आज की रात फजर तक तुमने सुबह सारी अल्लाह यही कहता है कोई मुझसे रोजी का तलबगार जिसे मैं रोजी दे दूं, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं। तो आज रात आप माफी जरूर मांगे। और मेरे अजीजों जानते हैं अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, कुरान भी पढ़ना नहीं आता है, तो कम अज कम आप जो है कि नहा धो करके तो आए होंगे ना। आप घर जाइए या मस्जिद में जाइए या कब्रिस्तान में जाइए, कुरान पढ़ने आपको नहीं आता है, कुरान हाथ में लीजिए, कुरान हाथ में लेके आप बैठ जाइए। सिर्फ कुरान हाथ में लेने की बरकत से अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा।
जानते हैं, एक जो कि बहुत बड़ा शराबी इंसान था, हमेशा शराब पिया करता था, कोई इबादत नहीं थी, कोई नेकी थी ही नहीं उसके पास, शराबी इंसान था। जब उसका इंतकाल हो गया ना, जिस रात वो मरा, उसी रात उस मोहल्ले के किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, क्या देखा ख्वाब में, कि वो शराबी इंसान जन्नत में टहल रहा है। जब सुबह हुई, फजर की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अपने एक भाई से कहा कि यार वो फला शराबी रात में मरा है, मैंने तो उसे जन्नत में देखा है। इतने में दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ यही ख्वाब मैंने भी देखा है, आज रात मैंने भी यही ख्वाब देखा है कि वो जन्नत में आया है। इतने में तीसरा इंसान आया, वो कहने लगा यार ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने भी तो यही ख्वाब देखा है कि वो जन्नत में था। इसी तरह मेरे आज पूरी भीड़ लग गई और सारे लोगों ने एक ही जवाब दिया था कि ये लोगों ये ख्वाब मैंने भी देखा है। सबने यही कहा ये ख्वाब मैंने भी देखा है कि वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। अब मेरे अजीज मोहल्ले के सारे लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो इतना बड़ा गुनहगार था, खताकार था, सियाकार था, शराबी था, लेकिन सारे लोगों ने उसको जन्नत में टहलते हुए देखा। बात क्या है? पता लगाने के लिए लोग उसके घर गए। जब उसके घर गए, उसके बीवी से मुलाकात हुई। लोगों ने बीवी से कहा, ए खातून बता, तेरा शौहर को कल इंतकाल हुआ है, बता कोई उसका अमल क्या था, वो क्या रात में घर में कोई अमल किया करता था? वो खातून कहती है नहीं लोगों, वो कोई अमल नहीं किया करते थे। मेरे अजीजों, खातून कहती है वो तो दिन भर शराब किया करते थे, रात में शराब का नशा जब उतर जाता था तो उनकी एक खासियत थी, जब शराब का नशा उतर जाता तो रात के आखिरी हिस्से में रहते थे और हुस्न करते थे, और हुस्न करने के बाद हाथ में लेते थे और लोगों सुनो सुनो, मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता, वो कुरान नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन कुरान को लेकर बैठ जाया करते थे, उंगली को फेंकते जाते थे और कहते जाते थे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कुरान पढ़ने नहीं आता, कुरान को खोलते, ये भी सही है, ये भी सही है, पन्ना उलटते जाते थे, ये भी सही है, ये भी सही है, यही मेरा मामूल था। अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गई है, अब गौर फरमाएं, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता था, कुरान को लेकर बैठे थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही कहा करते थे। इसी के सदक़े में अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी। इसलिए मेरे अजीजों, आप कुरान पाक को पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम जरूर दें, दुनियावी तालीम भी दें, मगर कम से कम अपने बाप को अरबी इतनी पढ़ाए कि आपका बच्चा सही ढंग से कुरान को पढ़ ले। इसलिए कि मेरे अजीजों, एक दिन सभी लोगों को इसी कब्र में आना है, और याद रखें जब आप इस कब्र में आ जाएंगे तो आपको मदद कहाँ से मिलेगी? अगर आपने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, वही बच्चा जब आपकी कब्र पे जाएगा, चंद सूरतें तिलावत करेगा, चंद सूरतें तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देगा, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे अजीजों, आपने अपने बच्चे को एक हाफिज़ कुरान बना दिया है, एक आलिम दीन बना दिया है, और आपके बच्चे ने दुनिया में आपको बना दिया, मगर मरने के बाद अगर आपकी कब्र पे जा गए आपके नाम सारे सवाल करके दुआ करेगा तो अगर पूरी जिंदगी पढ़ाना वसूल। इसलिए मेरे अजीजों, अब बात को खत्म की जाए ना, सुनने का मूड नहीं है लोगों का, नाच पड़ेगी।